आइए हम सब प्रार्थना करें। Thank you, Father. Hallelujah. We praise you, Lord. Thank you, Lord. We praise you. Thank you, Father. Hallelujah. Father, we thank you for this amazing opportunity to minister your word. पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत अवसर के लिए कि हम आपके वचन को सिखा सकें। We thank you for everyone who's come today. हम धन्यवाद करते हैं हर उस व्यक्ति का जो आज यहाँ आया है। We thank you for everyone who's watching us online. हम धन्यवाद करते हैं हर उस व्यक्ति के लिए जो ऑनलाइन के माध्यम से देख रहा है। We thank you for giving us this place where we can do our Sunday service. हम धन्यवाद करते हैं ये जगह देने के लिए जहाँ हम हमारी रविवार की सभा कर सकते हैं। We thank you for being so good to us हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी ओर बहुत भले हैं and all that you have done for us this week. और जो कुछ भी आपने हमारे लिए सप्ताह भर किया, You have again displayed your power. आपने फिर अपने सामर्थ का प्रदर्शन किया है। We thank you, Lord, that you're going to speak to us right now. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमसे बातें करेंगे। You're going to reveal and give us revelation about yourself. आप अपने आप को और अपने बारे में प्रकाशन देंगे और अपने आप को प्रकट We करेंगे। thank you for doing it. ऐसा करने के लिए धन्यवाद In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। I want to welcome all of you to church today. मैं आप सभी का आज कलीसिया में स्वागत करना चाहता It's हूँ। good to see all of you. बहुत अच्छा है आप सबको देखकर। And so let's continue our session on the one whom God sends. It's a prosperity session. हमारे समृद्धि के सत्र को हम जारी रखेंगे जो है वह जिसे परमेश्वर भेजता है। The one whom God sends. वह जिसे परमेश्वर भेजता है। We are of course talking about God's anointed servants. हाँ, हम परमेश्वर के अभिषिक्त परमेश्वर के जनों के बारे में बात कर रहे Now हैं। look at this verse. Let's go to the prosperity of your life is connected to God's anointed servants whom God uses as channels of blessing. आपके जीवन की समृद्धि परमेश्वर के चुने हुए सेवकों से जुड़ी है जिन्हें परमेश्वर आशीर्वाद देने के लिए इस्तेमाल करता है। They are channels. They are not the one who are the source of blessings. They are the channels through whom you get blessed. वो आशीषों के स्रोत नहीं है, वो आशीषों के माध्यम है जिनके द्वारा आप आशीर्वादित होते हैं। And so if we have to prosper, then we have to get connected to whomever God has appointed for us. अगर हम चाहते हैं कि हम समृद्ध हो तो हमें जिसे भी परमेश्वर ने हमारे ऊपर नियुक्त किया है उससे जुड़ना है, Because there are so many. क्योंकि बहुत सारे हैं। We were in a place last time, हम पिछली बार last week. ये पिछले सप्ताह हम एक जगह पर थे, So many pastors. बहुत सारे पासबान आए थे, Amazing conference. बहुत अद्भुत कॉन्फ्रेंस था, So there are so many pastors. तो बहुत सारे पासबान आए थे। Who is appointed and anointed for you? आपके लिए कौन अभिषिक्त और नियुक्त किया गया है? So the prosperity of your life is connected. It is connected to God's anointed servants whom God uses as channels of blessing. तो आपके जीवन की समृद्धि परमेश्वर के चुने हुए सेवकों से जुड़ी है जिन्हें परमेश्वर आशीर्वाद देने के लिए इस्तेमाल करता है। Let's go to 2 Chronicles 20:20. हम दूसरा इतिहास 20 का 20 देखेंगे। He said, "Believe in the Lord your God." वो कहता है अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो "And you will be established." तब तुम स्थिर रहोगे। Believe his anointed servants, so you shall prosper. और उसके अभिषिक्त सेवकों की प्रतीति करो तब तुम समृद्ध हो जाओगे। The one whom God sends. उन्हें जिसे परमेश्वर भेजता है, The one whom God sends. जिसे परमेश्वर भेजता है। So we have to be careful whom we hear. तो हमें बहुत सावधान रहना है कि हम किसको सुनते हैं। One says prosperity is God's will. एक कहता है कि समृद्धि परमेश्वर की इच्छा है, Another says poverty is God's will. दूसरा कहता है गरीबी परमेश्वर की इच्छा है, Another says middle is God's will. कोई कहता है कि बीच वाली परमेश्वर की इच्छा है। Sometimes prosperity, sometimes poverty. कभी कभी समृद्धि, कभी कभी गरीबी। So if you're listening to so many, then you're confused. What
is the actual message. तो अगर आप बहुत सारों को सुनोगे तो आप घबरा जाओगे कि अब ये सही संदेश क्या है. He says, believe the Lord, you will be established. Believe his servants, so you shall prosper. वो कहता है कि अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो तब तुम स्थिर होंगे और उसके सेवकों की प्रतीति करो तब तुम समृद्ध हो जाओगे. Ephesians 4:11. इफिसियों 4:11. इसको देखिए. And Jesus gave to the church some apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers. तब यीशु मसीह ने कलीसिया को कितने से भविष्यवक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले, रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया. Now Jesus has given these servants to the church. तो यीशु मसीह ने इन सेवकों को कलीसिया को दे दिया है. So obviously they are selected by Jesus. तो ये जो सेवक है वो यीशु ने खुद चुने हैं. They are not self-selected. उन्होंने अपने आप को नहीं चुना. They are not voted into office. उनको किसी ने वोट देकर पासबान नहीं बनाया. They are selected by Jesus Christ. वो यीशु मसीह के द्वारा चुने हुए हैं. And these people, they have been appointed and given to the church. और इन लोगों को यीशु मसीह ने नियुक्त किया है और कलीसिया को दे दिया है. Verse 12. Why? वचन 12. क्यों? For the perfecting of the saints. जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए. Can you imagine? Jesus has given some people to the church so that the entire church will be perfected. यीशु ने कुछ लोगों को कलीसिया को दिया है ताकि पूरी कलीसिया सिद्ध हो जाए. That means without those men, the church cannot be perfected. इसका अर्थ है कि उन जनों के बगैर कलीसिया कभी सिद्ध नहीं हो सकती. So they have been given for the perfecting of the saints. तो वो पवित्र लोगों की सिद्धता के लिए दिए गए हैं. They have been given for the work of the ministry. वो सेवा का काम किया जाए इसलिए दिए गए हैं. That means men of God must prepare you for your ministry. इसका अर्थ है कि परमेश्वर के जन आपको आपकी सेवकाई के लिए तैयार करना चाहिए. Every believer is supposed to do ministry. हर एक विश्वासी को सेवकाई करना है. Now most of the time when we talk about ministry, they think standing behind a podium, they think that's ministry. तो कई बार अगर हम सेवकाई की बात करते तो उनको क्या लगता है कि इस पोडियम के पीछे खड़े रहकर प्रचार करना है. No, it's in every field. नहीं, ये हर एक क्षेत्र में होता है. Maybe in the sports field. शायद से खेल कूद के क्षेत्र में, Maybe in the business field. या व्यवसाय के क्षेत्र में, Maybe in the education field. या शिक्षण के क्षेत्र में. Every believer is a minister for God. हर एक विश्वासी परमेश्वर के लिए एक सेवक है. So the men of God must prepare the church for the work of the ministry. तो परमेश्वर के जन कलीसिया को सेवा का काम किया जाए इसके लिए सिद्ध हो जाए करे. That means without those servants, believers cannot be ready for ministry. इसका अर्थ है कि उन सेवकों के बगैर विश्वासी सेवा के काम के लिए तैयार नहीं किए जा सकते. And then for the edifying of the body of Christ. और फिर मसीह के देह की उन्नति के लिए. That means three things. What do God's servants do? They perfect you. तीन चीजें परमेश्वर के जन क्या करते हैं, वो पहले आपको सिद्ध करते हैं. So it's important to be submissive. तो ये बहुत जरूरी है कि हम अधीन हो जाए. Because it's like a doctor who's working on you. क्योंकि ये उस डॉक्टर के समान है जो आपके ऊपर कार्य कर रहा है. And so these people, they're going to perfect you if you be submissive. तो ये लोग आपको सिद्ध करेंगे अगर आप अधीन रहेंगे. It's very difficult to perfect someone who is rebellious. ये बहुत मुश्किल है किसी ऐसे व्यक्ति को सिद्ध करना जो बहुत बलवा करता है. It is very difficult to perfect someone who knows everything. एक व्यक्ति को जो सब जानता है उसे सिद्ध करना बहुत मुश्किल है. So unless we become submissive, we can't be perfected. तो जब तक हम अधीन नहीं हो जाते तब तक हम सिद्ध नहीं हो सकते. We cannot be prepared for ministry. हम सेवकाई के लिए तैयार नहीं किए जा सकते. And we cannot be edified without being submissive to God's anointed servants. और परमेश्वर के सेवकों के अधीन होने के बगैर हम कभी उन्नति नहीं पा सकते. Amen. Amen. So we need these, even men of God need men of God.
भले ही परमेश्वर के जनों को भी परमेश्वर के जनों की जरूरत होती है। Every believer needs man of God. हर एक विश्वासी को परमेश्वर की जन की जरूरत है। Then there are men of God who need men of God. और परमेश्वर के जन है जिनको परमेश्वर के जनों की जरूरत है। I have met a lot of pastors who are not submissive to anyone. मैंने बहुत पासबान से मिला हो जो किसी के अधीन नहीं है, So they get frustrated. तो बहुत निराश हो जाते हैं। Praise God. So the point today I want to share, जो मुद्दा मुझे शेयर करना है आज वो ये है, never treat your relationship with God's anointed servants as casual or common. परमेश्वर के अभिषिक्त सेवकों के साथ अपने संबंध को कभी भी साधारण या हल्के में न समझे। An anointed servant is not your friend. एक परमेश्वर का अभिषेक दास आपका दोस्त नहीं है, He is not your junior. वो आपका जूनियर या आपसे छोटा नहीं है। He is someone whom God has chosen वो एक ऐसा व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने खुद चुना है by grace, अनुग्रह के द्वारा, not because of color, आप अपने रंग के द्वारा नहीं, not because of personality. उसके व्यक्ति महत्व के द्वारा नहीं। God's anointed servants are chosen by grace. By grace they have become God's anointed servants. परमेश्वर के जनों को वो अनुग्रह के द्वारा चुनता है, अनुग्रह के द्वारा वो परमेश्वर के दास बनते हैं। So our relationship with God's anointed servants must not be casual or common like we have with friends. तो हमारा रिश्ता परमेश्वर के दासों के साथ बहुत ज्यादा साधारण या हल्का नहीं होना चाहिए। You can be common with those who are at your level. You can't be common with those who are above you. आप जो आपके स्तर पे उनके साथ साधारण रह सकते हैं, पर जो आपके ऊपर है आप उनके साथ साधारण व्यवहार नहीं कर सकते। So never treat your relationship with God's anointed servants as casual or common relationship. तो कभी भी परमेश्वर के अभिषेक सेवक के साथ अपने संबंध को कभी भी साधारण या हल्का ना समझे। We must always maintain that atmosphere of honor. हमें हमेशा वो आदर का वातावरण बनाए रखना है। That's why when the relationship becomes very casual, very common, then the supply is blocked. क्योंकि जब कभी भी वो रिश्ता बहुत ज्यादा साधारण या हल्का हो जाता है तो वो आपूर्ति रुक जाती है। I've seen people who are very casual in their speech about God's servants. मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा विश्वासी अपनी बोली में परमेश्वर के दासों के प्रति बहुत ज्यादा हल्के में लेते हैं उन्हें। And you look at their life, और आप उनके जीवनों को देखें, the things that are happening in their life, जो चीजें उनके जीवनों में हो रही है it's terrible. बहुत खराब है। Because they have made their relationship with God's appointed servants casual or very common. क्योंकि उन्होंने अपना रिश्ता जो परमेश्वर के अभिषेक दासों के साथ है उससे बहुत साधारण या हल्का बनाया है। It's not a casual relationship. ये एक हल्का और साधारण रिश्ता नहीं है। It's not a common relationship. ये कोई साधारण या आम रिश्ता नहीं है। So very important point. तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। And next point. अगला मुद्दा, Dishonor, casual or common simply means dishonor. तो साधारण या हल्के में समझने का साधारण अर्थ है अनादर। When we dishonor, it blocks the supply of grace. तो जब हम अनादर करते हैं तो वो अनुग्रह की आपूर्ति को रोक देता है। So when I am around my man of God, तो जब मैं मेरे परमेश्वर के दासों के प्रति हूँ, इर्द गिर्द हूँ, I want to make sure that when I'm around my man of God, I don't want my relationship with him to be common or casual. तो जब मैं अपने परमेश्वर के जन के इर्द गिर्द हूँ तो मैं नहीं चाहता कि मेरा रिश्ता उनके साथ बहुत ज्यादा साधारण या हल्का हो जाए। It's not like I'm talking about my friends. ये ऐसा नहीं है कि मैं अपने किसी मित्र के बारे में बात कर रहा हूँ। It's not like I'm talking about some of my juniors. ये ऐसा भी नहीं है कि कोई जो मुझसे छोटा है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। Anytime your relationship with God's appointed servants become casual or common, it will block the supply from God's servants to you. जब भी आपका रिश्ता परमेश्वर के अभिषेक दासों के साथ बहुत साधारण या हल्का हो जाता है तो वो जो आपूर्ति है, अनुग्रह की आपूर्ति है, उसको रोक देता है। And that's why the men of God that understand this, you won't find them everywhere.
तो जो परमेश्वर के दास जो इन चीजों को समझते हैं, आप उन्हें हर जगह नहीं पाएंगे। They are not everywhere. वो हर जगह नहीं होते, They are not there in every meeting. वो हर एक मीटिंग में नहीं होते, Because too much availability is a way of dishonor. क्योंकि बहुत ज्यादा अगर आप उपलब्धिता दिखा रहे हो तो वो एक अनादर होता है। So dishonor blocks the supply of grace. तो अनादर अनुग्रह की आपूर्ति को रोक देता है। So what is my part? तो मेरा भाग क्या है? My part is towards my God appointed servants. We don't know about others, but my part is I have to maintain the atmosphere of honor. मुझे दूसरों के बारे में तो पता नहीं, पर जो मेरे नियुक्त किए हुए दास परमेश्वर ने दिए हैं, मुझे उनके साथ एक आदर का वातावरण बनाए रखना है। Ham was a hard worker, हाम जो था वो बहुत कठिन मेहनत करने वाला व्यक्ति था, maybe looked good, शायद से अच्छा भी दिखता हो, great personality, अच्छा व्यक्तित्व होगा, smart, होशियार होगा, but Noah spoke wrong words over him. पर नूह ने उसके ऊपर गलत शब्दों को बोले। So smartness don't matter, तो आपकी होशियारी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, personality don't matter. आपके व्यक्तित्व से फर्क नहीं पड़ता। When someone above you who is appointed by God speaks over you, if there are negative words, personality don't matter, destination is affected. और जो व्यक्ति आपके ऊपर है, जो परमेश्वर का दास आपके ऊपर है, अगर वो आपके बारे में नकारात्मक चीजों को बोले तो आपकी होशियारी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपके जीवन की मंजिल बदल जाती है। See, these are keys ये सब कुंजियां हैं that if we know, कि अगर हम जानते हैं, we will prosper. हम समृद्ध होंगे। Because the worldly ways are so different, the kingdom ways are so different. क्योंकि संसार के तरीके बहुत अलग है, राज्य के तरीके बहुत अलग है। So you could be very casual about your speech concerning your God appointed servants. तो आपने जो परमेश्वर दिए गए हैं दास है, उनके प्रति का जो आपका बोली है, आप उसके बारे में बहुत हल्के में ले सकते हैं उन चीजों को। It's not about God's servants hearing you. It's about God hearing you. ये ऐसा नहीं है मानो परमेश्वर के दास आपको सुन रहे हैं, ये ऐसा है कि परमेश्वर खुद आपको सुन रहा है। So anytime the relationship is casual तो जब कभी भी वो रिश्ता साधारण हो जाता है or it's common, या वो आम हो जाता है, it will block your receiving from God's channel. तो वो आपको परमेश्वर के माध्यम से जो आपका ग्रहण करना है वो रुक जाता है। Why was Elijah sent to Zarephath and not to his own village? एलिया को यारफात क्यों भेजा गया? आपने खुद के गांव को छोड़कर। First, you should help your own village. पहले आपने आपको आपके गांव की मदद करनी You है, should help your own village. आपने खुद के गांव की मदद करनी है। But why was he sent to a far off village? Is because of honor. पर क्यों वो किसी दूर गांव में भेजा गया? वो आदर की वजह से था। So it is wise for all of us that we maintain, don't know about others, but about you, you maintain an atmosphere of honor and receive everything God has for you through God's appointed servants. तो ये बहुत बुद्धिमानी की बात होगी, दूसरों के बारे में पता नहीं, पर आप आपके जो परमेश्वर दिए गए दास है उनके साथ आप एक आदर का वातावरण बनाए रखें, ताकि जो भी परमेश्वर उस दास के द्वारा आपको देता है आप सब ग्रहण कर पाए। All you can receive, जितना आप ग्रहण कर पाए सब, whatever God has for you. जो भी परमेश्वर के पास आपके लिए है। So let's go to Mark 6:1. तो मरकुस 6:1 पढ़ेंगे। You know the verse. आप ये वचन जानते हैं। And he went out from there and came into his own country, and his disciples followed him. वहां से निकलकर वो अपने देश में आया और उसके चेले उसके पीछे हो लिए। Verse 2. वचन 2। And when the Sabbath day was come, he began to teach in the synagogue. Many hearing him were astonished, saying, From where did this man get these things? What wisdom is this which is given to him, that even such mighty works are wrought by his hands? सबत के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा। वह बहुत लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहां से आ गई, और कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है, और कैसा सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं। Verse 3. वचन 3। Is this not the carpenter? क्या ये वही बढ़ई नहीं? Whenever you make it common,
you will block the supply. जब कभी भी आप उन चीजों को साधारण बनाएंगे, आप उस आपूर्ति को रोक देंगे। Look at their statement concerning Jesus. आप उनकी वाक्य रचना को देखिए यीशु मसीह के बारे में, The one through whom God wants to bless this village. जिसके द्वारा परमेश्वर इन पूरे गांव को आशीष करना चाहता है। But they are referring to him as just a carpenter, making their relationship with him common and casual. तो वो उसको सिर्फ एक बढ़ई की तरह देख रहे हैं और उसके रिश्ते को उसके साथ बहुत साधारण और हल्का बना रहे हैं। He said, "What's so special about him? वो कहते हैं कि इसके बारे में खास क्या है? He's just a carpenter." वो तो एक बढ़ई है। Is this not the carpenter, the son of Mary? The brothers are here, are not his sisters with us? And they were offended at him. क्या ये वही बढ़ई नहीं है जो मरियम का पुत्र है और इसके भाई यहाँ है, और क्या उसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। God sent Jesus to this village परमेश्वर ने यीशु को इस देश में, इस गांव में भेजा with an intention that through Jesus I'm going to release something on this village. इस इरादों के साथ कि वो यीशु के द्वारा इस गांव में कुछ रिहा करेंगे। But there is a problem in this village. पर इस गांव में एक समस्या है। The village takes men of God lightly. ये गांव परमेश्वर के जनों को बहुत हल्के में लेता है। देखिए क्या बोला, Is this not the carpenter? What does he think of himself? वो कहते हैं कि क्या ये वो बड़ा ही नहीं है? अपने बारे में क्या सोचता है ये? His brothers are with us. इसके भाई हमारे साथ है, His sisters are with us. उसकी बहनें हमारे साथ है। They are treating their relationship with Jesus common and casual. वो अपने रिश्ते को यीशु मसीह के साथ बहुत साधारण और हल्का बता रहे हैं। So Jesus said in verse 4, तो यीशु ने वचन 4 में कहा, Jesus said, a prophet is not without honor, but in his own country, among his own kin and in his own house. यीशु ने उनसे कहा कि भविष्यवक्ता अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़कर और कहीं निरादर नहीं होता। Because wherever there is dishonor, there is no supply. कि जहां कहीं भी निरादर है वहां पे कोई भी आपूर्ति नहीं। Any man of God that you dishonor, you can't receive. You have to change and go somewhere else. जिस परमेश्वर के दास का आप निरादर करते हैं, कि जिस भी परमेश्वर के दास का आप करते हो, वो जगह आपको बदलनी होगी, आपको कहीं और जाना होगा। So Jesus comes to this village. तो यीशु मसीह इस गांव में आता है। Didn't come to take anything, he has come to give them. वो कुछ लेने नहीं आया, वो देने के लिए आया है। And as soon as he entered, he said, "Carpenter है ये." और जैसे ही वो आया, वो लोग ने कहा कि यार ये तो बड़ा ही है। They did not give any bouquet. उन्होंने से कुछ बुके नहीं दिया। We went to Ahmednagar and they put a turban on me. और जब हम अहमदनगर गए तो उन्होंने मेरे सिर पर फेटा बांधा था। I thought it is peta. They didn't say it's peta. Peta is a suit. It says feta. I said, "Oh, good. I didn't say in church peta. Otherwise, they'll think sweet डाल दिया ऊपर." मुझे लगा पेठा होता है, पर उन्होंने फेटा कहा He था। said, "No, pastor, it's feta." उन्होंने कहा नहीं पास्टर, उससे फेटा बोलते हैं। And so they welcomed us so well. तो उन्होंने हमारा स्वागत बहुत आदर से किया। They didn't treat us as common. उन्होंने हमारा व्यवहार कोई साधारण लोगों की तरह नहीं किया। You know, they say that pastors never sit for more than half an hour. उन्होंने कई लोगों ने कहा था कि जो पासवान वहां पे आते हैं वो कभी भी आधे घंटे से ज्यादा बैठते नहीं है। They don't sit. वो नहीं बैठते। They sit for a moment and they go. वो कुछ समय बैठते हैं फिर निकल जाते हैं। They say this is the first conference. वो कहते हैं कि ये पहला कॉन्फ्रेंस है Where all the pastors sat for all the sessions. जहां सब पासवान सारे सत्र के लिए बैठे। They sat for the impartation. वो स्थानांतरण के लिए भी बैठे। And after the impartation they were still sitting. और स्थानांतरण के बाद भी वो बैठे ही थे। It was the move of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा का चलन था वहां पे। And more meetings are coming up. और बहुत और मीटिंग आ रहे हैं। Amen. Amen. It's just the move of the Holy Spirit. ये सिर्फ पवित्र आत्मा का चलन है। Amazing. Just amazing move of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का अद्भुत चलन है। So he said, because there is no honor, there won't be supply. वो कहता है क्योंकि यहाँ पे कोई आदर नहीं तो यहाँ पे कोई आपूर्ति भी नहीं होगी। Now, if you are in this village, अगर आप इस गांव में हैं, you should not act like them. आपको इनकी तरह व्यवहार नहीं करना। You should say, Lord, बाकी का पता नहीं.
हम कहते हैं प्रभु दूसरों का पता नहीं मेरे को, I will maintain an atmosphere of honor so that whatever Jesus has come to give, I'll take it. मैं अपने इर्द गिर्द वो आदर का वातावरण बनाए रखूंगा ताकि जो भी यीशु देने के लिए आया है मैं सब ले सकूं। Amazing that Elijah was not sent to his own village. बहुत अद्भुत है कि एलिया को अपने खुद के गांव में नहीं भेजा गया। See, God doesn't care who the people are. What God cares is where honor is. Where honor is, that's where servants will come. परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता वो लोग कौन है, परमेश्वर को फर्क पड़ता है आदर के बारे में। जहां कहीं भी आदर है परमेश्वर अपने दासों को वही भेजता है। Verse 5. वचन 5। He could now see, because of lack of honor or casual relationship, he could there do no mighty work, save that he laid his hands upon a few sick people and healed them. अभी हम देखेंगे कि आदर की कमी घटी की वजह से क्या हुआ, और वह कोई सामर्थ का काम नहीं कर सका, केवल थोड़े बीमार पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। He wanted to do it, but he couldn't do it because there was no honor. वो करना चाहता तो था पर वो कर नहीं पाया क्योंकि वहां पे कोई आदर नहीं था। So personally, the way it works for me, because tremendous grace is working in my life, you can't do all these things without the grace of God. आप क्योंकि मेरे जीवन के ऊपर बहुत ज्यादा परमेश्वर का अनुग्रह है और आप जो ये चीजें देख पा रहे हैं ये हम अनुग्रह के बगैर नहीं कर सकते। The things that we are doing, जो चीजें हम कर रहे हैं, the meetings that have been organized, जो मीटिंग हमारे लिए किए जा रहे हैं। one testimony, one pastor said, एक गवाही एक पासबान ने कहा, he came to the conference, वो इस कॉन्फ्रेंस में आए थे, he received impartation, उन्होंने स्थानांतरण को उन्होंने ग्रहण किया, he went back वो घर गए, to his village. अपने गांव गए, Someone called him to his house, किसी ने उनको अपने घर पे बुलाया फोन and करके, he went there, prayed for them. और उन्होंने वहां जाकर प्रार्थना किया। Before he was going, वो जाने से पहले they gave him gold, उन्होंने उसे सोना दिया, 3 to 4 grams of gold, 3 से 4 तोला सोना, which is around tola nahi, ऐसा ग्राम। you're very prosperous man. उनको ग्राम सुना नहीं देता, तोला ही सुना. So let's try it again, okay? He will say तोला कब मिला? He'll call me and say तोला कब मिला? So this brother, he gave him 3 to 4 grams of gold. तो इस भाई ने उन्हें 3 से 4 ग्राम सोना दिया, He saw it. उन्होंने देखा, Then he told my pastor at Ahmednagar. तो उन्होंने जो हमारे पासबान है अहमदनगर में उन्हें बताया, He said, in 36 years of ministry, उन्होंने कहा आप 36 साल की सेवकाई में this has never happened. ये कभी नहीं हुआ। Hallelujah. हालेलुया। It's never happened. ऐसा कभी नहीं हुआ। It never came in people's mind to bless the man of God. After this conference, suddenly people are thinking about us. वो कभी भी किसी व्यक्ति के मन में नहीं आया किसी परमेश्वर के दास को आशीष करे, पर ये कॉन्फ्रेंस के बाद हम सबके मन में हम आ गए। So he was very shocked तो बहुत चौंक गए because the value is around 40, 50, 60,000 क्योंकि rupees. उसकी रकम 40 से 60 हजार के बीच में है, This is just one testimony. और ये सिर्फ एक गवाही है। What we are trying to do is we are trying to bring the pastor's focus to Jesus Christ. हम क्या कर रहे हैं, हम पासबानों का ध्यान जो है वो हम यीशु मसीह की ओर लेकर आ रहे हैं। And every place that people come from to the meeting, they go back with this intention that in our place we have to do the conference. और जो भी व्यक्ति आकर वापस जाता है तो वो इसी मानसिकता के साथ वापस जाते हैं कि हमारे जगह पे भी हमें एक कॉन्फ्रेंस करना है। So this cannot happen without grace. तो ये बातें जो है ये अनुग्रह के बगैर नहीं हो सकती। And so how is this grace flowing to me? How is it flowing to me? तो ये अनुग्रह मेरी ओर कैसे बह रहा है? Because see, I'm teaching you how it works. मैं आपको I maintain an atmosphere of honor towards my appointed God servants. तो मेरे द्वारा मेरे लिए ऐसा हो रहा है कि मैं अपने इर्द गिर्द परमेश्वर के जो दास मुझे दिए गए हैं मैं उनके प्रति अपने इर्द गिर्द वो आदर के वातावरण को बनाए रख रहा हूँ। Ham is not my friend. हाम जो है वो मेरा मित्र नहीं, I run away from Ham. मैं हाम से दूर भागता हूँ। खुद भी जाएगा, मेरे को भी लेके जाएगा. So I stay away from Ham. तो हाम से मैं दूर रहता हूँ। Okay, verse 6. वचन 6। Now let's go to verse 5 again. हम वचन 5 को फिर पढ़ेंगे। He wanted to look at the construction of the statement. He could not. He wanted to, but he couldn't.
वो करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया. It's a big thing. वो करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया अनादर के कारण. Amen. He wanted to do it but he could not do it because of dishonor. वो करना चाहता था पर वो कर ना सका क्योंकि वहां पे अनादर था. It's a big problem. Dishonor is a big disease. और निरादर जो है बड़ी समस्या है, बड़ा रोग है. Verse 6. वचन 6. And he marveled because of their unbelief. Didn't stop him. He just went to another village. और उसने उनके अविश्वास पर आश्चर्य किया और वहां पे रुका नहीं और चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा. He didn't marvel at their unbelief and start crying. वो उनके अविश्वास पर आश्चर्य करके रोना नहीं बैठा. He just went to the next place where there will be honor. वो अगली जगह गया जहां पे आदर हो. Hallelujah. हालेलुया. So my point to you is, let's go to the next point. तो मेरा मुद्दा ये है, Honor is the master key. आदर ही मुख्य कुंजी है. We must never treat our relationship with God's anointed servants as casual or common because we have to receive through them. हमें अपने किसी भी परमेश्वर के दासों के प्रति हमारा जो व्यवहार है हमें उसे साधारण और हल्का नहीं बनाना है, क्योंकि हमें उनसे कुछ बातों को ग्रहण करना है. Because honor is the master key. क्योंकि आदर ही मुख्य कुंजी है. And honor means weight. Give them weight. Don't make it common. Don't make it casual. Give them weight and make it serious. और आदर का अर्थ है कि उन्हें वजन देना, उनको गंभीर बनाना, उनके बारे में चीजों को साधारण या हल्के में न लेना, उन्हें गंभीर बनाना. Whatever the man of God carries, God's anointed servants carry, are only transmitted in the atmosphere of honor. जो कुछ भी परमेश्वर का जन लेकर चलता है वो सिर्फ आदर के वातावरण में ही बाहर निकलता है. And that's why these things happen. We maintain the atmosphere of honor. We maintain it. और हम यही करते हैं, हम उस वातावरण को बनाए रखते हैं. We maintain that atmosphere. No matter what anybody says, we maintain the atmosphere of honor towards those whom God has placed over us. भले कुछ भी हो जाए, हम जो जिसे परमेश्वर ने हमारे ऊपर नियुक्त किया है, हम उनके प्रति हमारे लिए जो आदर है हम उसे बरकरार रखते हैं. Honor is the master key. आदर ही मुख्य कुंजी है. सब बोलिए, honor is the master key. Honor is the master key. हिंदी में बोलिए, आदर ही मुख्य कुंजी है. आदर ही मुख्य कुंजी है. Whatever God's servants carry, you cannot take with the hand. जो भी परमेश्वर के जन लेकर चलते हैं आप उसे हाथों से नहीं पकड़ सकते. You take it by honor. आप उसे आदर से पकड़ते हैं. You take it by honor. Honor is the hand that you take what God has put in that channel for you. आदर वो हाथ है जिससे आप जो परमेश्वर ने आपके लिए उस माध्यम में रखा है आप उन चीजों को लेते हैं. These are keys. ये सब कुंजियां है. It will help us greatly. ये हमें बहुत अच्छे से मदद करेंगी And make life easier. और हमारा जीवन आसान बना देंगी. When you have the key, opening the door is so easy. जब आपके पास चाबी होती है तो दरवाजा खोलना बहुत सहज हो जाता So है. these are keys. तो ये सब कुंजियां है. Hebrews 7:7 finally. इब्रानियों 7:7 आखिर में देखेंगे. इसको देखिए, Hebrews 7:7. इब्रानियों 7:7. And without all contradiction, the less is blessed of the better. और उसमें कोई संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है. That means it's the better who blesses the lesser. तो ये बड़ा है जो छोटे को आशीष करता है. How does the one become better? How do they become big? It's through grace. It's not through personality. तो ऐसा तो एक व्यक्ति बड़ा कैसे बनता है? वो अपने खुद से नहीं बनता, वो अनुग्रह के द्वारा बनता है. He doesn't become better because of education. वो पढ़ाई के द्वारा बड़ा नहीं बनता. He doesn't become better because he has Bible college certificate. उसके पास बाइबल कॉलेज का सर्टिफिकेट है इसलिए वो बड़ा नहीं He बनता. doesn't become better because he read the Bible 45 times. उसने बाइबल को 40 बार से भी ज्यादा पढ़ा है इसलिए वो बड़ा नहीं बनता. He becomes better because by grace God has selected him. वो बड़ा इसलिए बनता है क्योंकि अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने उसे चुना है. You know, this is talking about how Melchizedek spoke
over Abraham. As big as Abraham was, Melchizedek was speaking over Abraham. और ये इब्राहिम और मलकीसदेक को दिखाता है कि भले ही इब्राहिम कितना बड़ा क्यों ना हो, मलकीसदेक था जिसने उसके ऊपर शब्दों को बोला। Somebody has to speak over you. किसी को तो आपके ऊपर बोलना है, Somebody has to speak over you. किसी को तो आपके ऊपर बोलना है, Somebody whom God has appointed, they have to speak over you. किसी को जिसे परमेश्वर ने आपके ऊपर नियुक्त किया है उसे बोलना है। And whoever that anointed servants are, if you have to receive from them, then we have to maintain an atmosphere of honor. और जो कोई भी ये दास है, अगर हम उनसे ग्रहण करना चाहते हैं तो हमें वो आदर का वातावरण बनाए रखना है। And so we keep the right friendship. तो हम सही मित्रता को रखते हैं। We don't associate with people for whom men of God are very common. हम उनके साथ सहभागिता नहीं करते जो परमेश्वर के दासों को बहुत हल्के में लेते हो। We don't associate with people who treat men of God with contempt and pass comments about any man of God anytime. और हम उन लोगों के साथ सहभागिता नहीं करते जो परमेश्वर के दासों के प्रति बहुत हल्के रवैये के साथ चलते हैं और उनके बारे में बहुत अपने सुझाव को बताते रहते हैं। Why we would want to destroy our future? क्यों हम अपने खुद के भविष्य को नष्ट करें? A lot of people are saving money. बहुत सारे लोग पैसे को बचा रहे हैं, They invest here, यहाँ निवेश करते हैं, there, वहाँ निवेश करते they हैं, invest it. वो निवेश करते हैं। Why? क्यों? Because they are hoping कि आगे जाके our future will be secure. क्योंकि वो ऐसी आशा रखते हैं कि आगे जाके हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। They invest in FD, वो एफडी में निवेश करते all हैं the investment schemes, और जो भी निवेश करने की स्कीम है उनमें करते हैं, with the hope that tomorrow when we step into 2030, we'll have enough resources. ये इस आशा में वो करते हैं कि अगर 2030 में अगर हम जाए तो हमारे पास कुछ तो हो। All of that don't matter if you don't know how to honor. ये सब बातें से कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर आप नहीं जानते कि आदर कैसे करना है। The less is blessed by the better. छोटा बड़े से आशीष पाता है। So whoever that better is, तो जो भी बड़ा है वो व्यक्ति when he speaks, जब वो बोलता है you have to listen आपको सुनना है carefully. बहुत ध्यान से। What is he saying? क्या वो कह रहे हैं? You can't treat him as one of my friends are talking. Your friend is not talking. The better is talking over you. आप उसको अपने मित्र की तरह व्यवहार नहीं कर सकती। ये आपका मित्र बात नहीं कर रहा, ये कोई ऐसा बात कर रहा है जो आपसे बड़ा है। And so God is using this channel to speak something to you. और परमेश्वर इस माध्यम का इस्तेमाल कर रहा है आपसे कुछ बातें करने के लिए। And when you receive those words और जब आप उन शब्दों को ग्रहण करते हैं and not make your relationship common or casual, और आप अपने रिश्ते को उनके साथ साधारण या हल्का नहीं बनाते, how amazing it is that Jesus is in a village. Can you imagine? Jesus is in a village and people are still not receiving. How shocking. ये क्या अद्भुत और चौंका देने वाली बात है कि यीशु मसीह एक गांव में है और वहां पे लोग चंगे नहीं हैं, They're not receiving. वो ग्रहण नहीं कर रहे। What's blocking their receiving? उनके ग्रहण करने को क्या रोक रहा है? Their receiving is blocked because of dishonor. उनका ग्रहण करना निरादर की वजह से रुका हुआ है। So we must maintain an atmosphere of honor. तो हमें एक आदर का वातावरण बनाए रखना है। As you know, my spiritual father is Kenneth Copeland. जैसे आप जानते हो कि मेरे आत्मिक पिता जो है वो केनेथ कोपलैंड है। A lot of people speak against him. बहुत सारे लोग उनके खिलाफ बोलते हैं। I never speak against मैं him. कभी उनके खिलाफ नहीं बोलता। I don't even watch things that speak against him. मैं उन चीजों को देखता भी नहीं जो उनके खिलाफ बात करते So हैं। it doesn't matter what other people say. तो फर्क नहीं पड़ता दूसरे लोग क्या कहते हैं। I maintain an atmosphere of honor. मैं एक आदर का वातावरण बनाए रखता हूँ And because of that, tremendous grace flows. और क्योंकि वो बहुत ज्यादा अनुग्रह बहता है And the results are coming. और परिणाम दिख रहे हैं And the results are becoming bigger. और परिणाम बड़े हो रहे हैं। Because results, my brothers and sisters, results don't come by smartness. It comes by grace. क्योंकि मेरे भाई और बहनों जो परिणाम है वो आपकी होशियारी से नहीं आते, वो अनुग्रह से आते हैं। Prosperity doesn't come by running here and there and running here and there and struggling and sweating. No.
Prosperity comes by grace. समृद्धि यहाँ वहाँ भागने से, वहाँ संघर्ष करने से, वहाँ भागने से नहीं आती। समृद्धि अनुग्रह से आती है। So personally, I want to encourage you. तो व्यक्तिगत तौर से मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। Don't know about other people, and it doesn't even matter. दूसरे लोगों का पता नहीं, उनके बारे में फर्क भी नहीं पड़ता। About you. आपके बारे में You maintain an atmosphere of honor. आप आदर का वातावरण बनाए रखे। You maintain an atmosphere of honor when you talk about God's anointed servants. अब जब कभी भी परमेश्वर के दासों के बारे में बात करें तो आप उस आदर के वातावरण को बनाए रखें। You maintain an atmosphere of honor when you're in the presence of an anointed servant. जब कभी भी आप परमेश्वर के दासों की उपस्थिति में हैं तो आप उस आदर के वातावरण को बनाए रखें। Take those people उन लोगों को ले and look at their future. उनके भविष्य को देखिए, It'll always be great. और वो हमेशा अद्भुत रहेगा, It'll always be great. हमेशा अद्भुत रहेगा। So we must maintain that atmosphere of honor. Wherever you are, we must maintain that atmosphere of honor. तो जहाँ कहीं भी हम हैं, हमें उस वातावरण को, आदर के वातावरण को बनाए रखना है। Had these people done it, अगर इन लोगों ने किया होता, whatever Jesus brought for them, they would have received everything. जो कुछ भी यीशु मसीह उनके लेके आया था वो सब का सब पा लेते। So they said that he's just a carpenter. तो उन्होंने कहा ये तो सिर्फ एक बड़ा ही है, His brothers are with us. उसके भाई हमारे साथ है, His sisters are with us. उसकी बहनें हमारे साथ है। What does he think he is? वो अपने को क्या समझता है? Anytime you make it common, you block the supply. जब कभी भी आप उसे साधारण बना देते हैं तो वो बहुत उसकी आपूर्ति रुक जाती है। I personally have not blocked the supply. मैंने खुद से वो आपूर्ति कभी रोकी नहीं। I have maintained that atmosphere of honor. मैंने उस आदर के वातावरण को बनाए रखा है। Not just about our man of God, but any man of God. Just maintain that atmosphere of honor. These are highly blessed people. At the same time, these are highly dangerous people. और सिर्फ हमारे परमेश्वर के जन के बारे में नहीं, किसी भी परमेश्वर के जन के बारे में, ये बहुत उच्च दर्जे पर अभिषिक्त लोग होते हैं और आशीर्वादित लोग होते हैं और ये खतरनाक भी होते हैं। Remember, Jesus stands in the midst of 7 golden lampstands. और आप याद रखें कि यीशु मसीह 7 दीवटों के बीच में खड़ा है। And 7 golden lampstands refers to 7 churches. और ये जो 7 दीवटें हैं, ये उस 7 कलीसिया को दर्शाती है। But in the middle, at the right hand, Jesus holds 7 stars. और बीच में अपने दाहिनी हाथ में यीशु में 7 तारों को पकड़े रखता है। And those 7 stars are chosen by grace, not because of their color. और ये जो 7 तारे हैं वो अनुग्रह के द्वारा चुने गए हैं, उनके रंग के द्वारा नहीं। And so these are at the right hand of Jesus, and we must honor them. और ये सब यीशु मसीह के दाहिने हाथ में और हमें उनका आदर करना है। Because their words can affect destinations. क्योंकि उनके शब्द हमारी मंजिल पर प्रभाव डाल सकते So हैं। we just want to make sure they speak the right thing over us. तो हम चाहते हैं कि वो हमारे ऊपर सही चीजों को बोले। Amen. Amen. सब बोलिए amen. Amen. For all of you, we are speaking the right words only. आप सब के लिए सही शब्दों को ही बोल रहे हैं। We only speak blessing words over you. हम आपके ऊपर सिर्फ आशीष के शब्दों को ही बोलते हैं। We are very careful. We don't just live by emotions and curse people left and right. हम अपने भावनाओं के साथ बहुत सावधान हैं और हम अपनी भावनाओं से नहीं जीते और यहाँ वहाँ लोगों को श्राप देते नहीं फिरते। And little mistake and cursing people, hitting them, we don't do all that. यहाँ पे थोड़ा गलती किया, उनको श्राप दे दिया, उनको मार दिया, ऐसा नहीं करते हम। We don't send snakes after people. हम लोगों के पीछे सांपों को नहीं छोड़ते। We speak blessing. हम आशीष के शब्दों को बोलते हैं। We don't speak curse words over people. हम हमारे लोगों के ऊपर श्राप के शब्दों को नहीं In बोलते। these 10 years, it has never happened इन 10 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ that I had to speak curse words over someone. कि मुझे किसी के खिलाफ श्राप को बोलना पड़ा। Because I know what a man of God's words can do. क्योंकि मैं जानता हूँ कि परमेश्वर के जन के शब्द क्या कर सकते So हैं। I encourage you, brothers and sisters, तो भाइयों बहनों मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ, and those that are watching, और जो देख रहे हैं, don't know about others. दूसरों के बारे में नहीं पता। As far as it is with you, जहां तक की बात आपकी है, try to maintain an atmosphere of honor. आप कृपया करके कोशिश करें कि आप उस आदर के वातावरण को बनाए रखें। It will help. वो आपको बहुत मदद It करेगा। will help you with your future and with your destination. ये आपको आपके भविष्य के साथ और आपके मंजिल के साथ बहुत ज्यादा मदद करेगा। Because the less
or the one who is down is blessed by the one who's above. क्योंकि जो छोटा है, इसका अर्थ जो नीचे है वो हमेशा बड़े जो उसके ऊपर है उसके द्वारा आशीष पाता है। Now in Christ you're already blessed. अभी मसीह में आप पहले से ही आशीषित है। When these men of God, when they speak, it affects the manifestation. और जब ये परमेश्वर के जन बोलते हैं तो वो प्रगटीकरण में उसका प्रभाव पड़ता है। It affects manifestation. तो प्रगटीकरण में उसका प्रभाव पड़ता है। So you want to make sure that you want to maintain an atmosphere of honor. तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपको वो आदर का वातावरण बनाए रखना है। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Father, we thank you for what we have heard today. धन्यवाद करते पिता जो कुछ भी आज हमने सुना। Lord, help us always maintain an atmosphere of honor. पिता हमारी मदद करता कि हम हमेशा वो आदर का वातावरण बनाए रखें That when we speak, कि जब कभी भी हम बोले we only speak honor when it comes to God's appointed servants. जहां तक बात परमेश्वर के दासों की आती है हम उनके लिए सिर्फ आदर के शब्दों को ही बोले। We don't associate with Him. हम हाम के साथ सहभागिता नहीं रखते। We don't stay where Ham is. हम वहां नहीं रुकते जहां पे हाम है। We are associates with Shem, हम शेम के साथ सहभागी है। one who knows how to honor and speak highly of God's anointed servants, no जो- matter who they are. जो जानता है कि परमेश्वर के दासों का आदर कैसे करना है और उनके बारे में उच्च उच्च बातों कैसे बोलना है, भले वो कोई भी हो। Help us always, help us, Holy Spirit, help us, remind us, keep us conscious to always maintain an atmosphere of honor. पवित्र आत्मा हमारी मदद करता कि हम सचेत रहे और इस बात को हम जागरूक रहे कि हम हमेशा परमेश्वर के दासों के प्रति उस आदर के वातावरण को बनाए रखे। Help us not harm ourselves. हमारी मदद करता कि हम अपने आप को हानि ना पहुंचाए। Help us see this reality. हमारी मदद करता कि हम इस वास्तविकता को देख सके। Help us see the power in this principle. हमारी मदद करता कि हम इस सिद्धांत में जो सामर्थ्य हम उसे देख सके And help us climb higher in you. और हमारी मदद करता कि हम तेरे ऊपर, हम तेरे अंदर और ऊपर बढ़ते We जाएं। only speak blessings over our people. हम हमारे लोगों के ऊपर सिर्फ आशीष के शब्दों को ही बोलते That हैं they will only prosper. कि वो सिर्फ समृद्ध होंगे, That they will only go higher. कि वो सिर्फ ऊपर जाएंगे That they'll always be protected. और वो हमेशा सुरक्षित होंगे That they always keep themselves in good company. और वो हमेशा अपने आप को सही सहभागिता में रखेंगे। Father, we give you praise पिता हम आपको स्तुति देते हैं in Jesus' name. यीशु के नाम में।